السلام علیکم فرینڈز، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دکھی منڈے، اور آج ہم آپ کو ایسی شخصیت کے ساتھ ملانا چاہیں گے جو کہ تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ مولانا ملک ناصر مدنی صاحب، جو کہ میاں نواز شریف کے ساتھ افطار پارٹی میں خطاب فرما رہے ہیں، اور بنا ٹائم ویسٹ کیے ان کا خطاب بھی سنیں اور دیکھیے کہ وہ خطاب میں کیا کیا باتیں کر رہے ہیں اور کیا سمجھا رہے ہیں۔ تو سر، آپ مولانا صاحب کے بارے میں کیا بتائیں؟ السلام علیکم بھائی، ماشاءاللہ میاں نواز شریف صاحب کی دعوت پر مدینہ منورہ ناصر مدنی صاحب گئے ہیں، جو کہ ان کا رتبہ اور اونچا ہو گیا ہے کیونکہ میاں صاحب کی دعوت پر گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جی انہوں کی دعوت قبول فرماوے، ملک ناصر مدنی صاحب نو اللہ تعالیٰ انہیں اور عزت دے، ایسی ہزاروں عزتیں دے اللہ تعالیٰ اسے۔ بہت نیک آدمی ہے، نیکی کا کام کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین حضرات، صدر محفل ملک پاکستان کی شان اور عزم برداشت کا نشان جناب عزت مآب سابق وزیر اعظم پاکستان جناب میاں محمد نواز شریف صاحب اور موجودہ وزیر خزانہ عزت مآب جناب صاحب صاحب، میں اس جگہ پہ آ جانا حرم نبوی میں اور عاشقان رسول جتنے افطار پارٹی میں موجود ہیں، میاں صاحب کی طرف سے اپنی طرف سے تمام عاشقان رسول کو اہلا و سہلا مرحبا کہتا ہوں مدینہ پاک میں، کہ یہ گھڑیاں روز روز نصیب نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان میں عمرہ کرتا ہے ایسے جیسے میرے ساتھ مل کے انہوں نے حج پڑھ لیا۔ جب بھی حضور کا نام آئے پاک حرموں میں اور جہاں بھی، آپ درود پاک پڑھا کریں۔ اور میں تو ویسے ہی پاکستان چ روز لوگوں کو کہنا کہ درود پڑھو، اتنا اللہ وظیفہ ہے میاں صاحب کے اللہ میں بل منگیا سب کچھ عطا کر دے، مگر اسی پھر بھی جانے تویزارے کو جی میرا کام نہیں چلتا جی، وہ میری دکان نہیں چلتی، وہ کہتے ہیں 10,000 مینوں پڑھا، تہاڈا چلے نہ چلے میرا چل گیا۔ اس لیے آپ نے ضرور جانا ہے، آپ درود پاک پڑھا کریں، اتنا پیارا آپ کے پاس۔ اگر جادو ٹونے سے ملک چلتا ہوتا تو اب نیا پاکستان بنا ہونا تھا۔ اس لیے
जादू टूने दे नाल या फिर तवीज़ धागे नाल मुल्क चलते होंदे ते फिर अगले घर च ही जादू जूदू कर लेंदे ने, टूने भी हो जाते हैं। तो मैं इत्थे इस वास्ते पंजाबी च गल शुरू की। मियाँ साहब कहते तुहाडा रिदम भी पंजाबी च, तो मैं इत्थे शेर पढ़ांगा कि जिन्ने साथी बैठे ने हरमे नबी से ज़्यादा तो ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ा करो। मियाँ साहब ने कहा है बड़े प्यार नाल, क्या ईमान वाला जुमला मियाँ मोहम्मद बख्श फरमांदे ने, लखां फेरे बेरी नूं लगदे ते चढ़ जांदे कई कच्चे, जेड़े पक्कण लाल मुहम्मद ते ओही खांदे वड्डे। और ये मियाँ साहब की एक नज़र करूँगा शेर, ये इन पे बड़ा फिट आता है। क्यों कहने ने मिठा मेवा बेरी देवे, मेरा चांद मेरा मक्खन मेरी मलाई, मियाँ नवाज शरीफ साहब। मियाँ साहब की नज़र ये शेर इसलिए करने लगा कि पाकिस्तान च जिन्ना मैं देखा है मियाँ साहब की बर्दाश्त, और मैं जो गल करना है फिर लोगों दी गल्लां सुन के असी इन्हां दे एक शेर मियाँ मोहम्मद बख्श साहब की शायरी दे विचों कटिया ते वो मैं सुना देना अपने चन्ना नूं। और जितने मेरे चन्न मक्खन बैठे हैं उन्होंने मेरी एको ही दावत कि मेरी हर गल च एक सबक होएगा। इस बर्दाश्त नूं मुल्क पाकिस्तान की बका की तरफ मैं इशारा देवांगा। कहते हैं मिठा मेवा बेरी देवे ते मुड़ भी वटे खावे। मियाँ साहब मिठा मेवा बेरी देवे ते मुड़ भी वटे खावे, वेख बेरी दा सबर मुहम्मद वो मुड़ भी फल दई जावे। असी मोटरवेयां बनवाइया, पुल बनाए, मियाँ साहब ने कितनी तरक्की का दौर लिया, फिर भी लोगों जो मर्जी किया, पर मियाँ साहब अज भी कहते हैं मेरा पाकिस्तान तरक्की करना चाहिए। और मैं इनकी बर्दाश्त को सलूट करता हूँ कि जिस जगह पे भी होते हैं मुल्क की बात करते हैं, अपने मुल्क की तरक्की। मैं देखा है, अब मैं सड़कों से 4-5 साल फिर तो जिन्ना नाबे वाला नवे पाकिस्तान का ख्वाब सी, मैं खुद फिर सड़क मेरे तो बाद कौन फिरता, मैं रोज़ जलसे करना है। अज उस पिंड च कल सड़क नहीं जिमें कुत्तियां रजाई पाड़ी होती हैं। आज कितने हैं सारे मुल्क के अंदर। मैं अपील करांगा कि अपनी जितने मेरे यहाँ दोस्त बैठे हैं बर्दाश्त रखना ही, और बर्दाश्त का सिला क्या मिलेगा। कहते ने बड़े प्यार नाल जितने मुसलमान बैठे मेरे नबी करीम ने फरमाया रोज़ा बर्दाश्त का दर्स देंदा है, हज बर्दाश्त का दर्स देंदा है, उमरा बर्दाश्त का दर्स देंदा है, तकवा तहारत बर्दाश्त का दर्स देंदा है। और जो इंसान मुल्क वास्ते इस्लाम वास्ते किसी भी तंगी को बर्दाश्त करता है, अज तैफ में अजाना मेरे मुहम्मद करीम दियां गूंजदियां पईयां ने। कहते सारी उम्र करां खत्म होनियां नहीं, सिफतां सोने मुहम्मद दी शान दियां, वदुआ मुकड़ा वल्लैल जुल्फां, दसर सूरतां पाक कुरान दियां। लोकी पत्थर मारन ओ दवा देवे, लोकी पत्थर मारन। मियाँ साहब तुसी पाकिस्तान की बेहतरी वास्ते सोची जाओ, करी जाओ, इंशाअल्लाह अजर अल्लाह ने तन देना इंशाअल्लाह। लोकी पत्थर मारन ओ दवा देवे, ये ते शाना ने मदनी सरकार दियां। सारे हाजियो पढ़ो कलमा, ताना रखो मदीने नू जान दियां। सारे जग तो हलीमा गरीबनी सी, कमली वाले नू चुके अमीर हो गई। नी तेनू जग ते कोई नाम जानदा सी, तेरी जग ते वखरी तकीर हो गई। मौला करम कीता तेरे भाग जागे, सारे जग दियां दाइयां दी पीर हो गई। ये हजूर के साथ जिसकी भी निस्बत जुड़ जाए, ये मैंने दरूद पाक में बात की, ਇਹਦਾ मतलब है कि दरूद पढ़िया हर दुआ कबूल होंदी है। निस्बत रसूल कायम कर ली है। मियाँ साहब ने लिखे है ना छड़ यार
तू यार दा बूआ नहीं ते बन जाएगा रोगी। मैं आई सलूट यू कहता हूँ मियाँ साहब को कि आप रमज़ान गुजारने के लिए मुस्तफ़ा के कदमों में आते हैं, जहाँ एक फरिश्ता है तो क़यामत तक उसकी बारी नहीं आएगी। और मैं सलूट करता हूँ ऐसे अमल थे कि पाक हरम च और जितनी बर्दाश्त मैं अपने दोस्तों को कहूँगा कि इदी अंदर ही इज्जत है। आप किसी की बदअखलाकी का जवाब बदअखलाकी से ना दें, आप किसी की बदअखलाकी कर बेसमझी का। कहते जिथे होवे एक कमला उन्हें समझावे बेड़ा, जिथे होवे बेड़ा कमला उन्हें समझावे बेड़ा। क्यों मेरा चांद, लव यू लव यू। ये मेरे बुजुर्ग बैठे हैं और जेड़ा बंदा दाद दवे उसने मोहब्बत करो, ये मेरा अंदाज है। मैं हर एक अपने चंद को चंद कहता हूँ। और मैं परसों चौथ एक पठान फ्रंटियर कोर का गल मैंने उसको बोला मेरा चंद, कहता चंद किसको कहते हैं? मैं कहा चांद को चंद कहते हैं, उसको समझ नहीं आया। तो ये जितने मेरे चंद बैठे हैं मैं शेर पढ़े, जिथे होवे एक कमला उन्हें समझावे बेड़ा, जिथे होवे बेड़ा कमला उन्हें समझावे केड़ा। तो लिहाजा मुंड पार्टी का गुस्सा नहीं करीदा, कहते रौल रन्ना ते कुड़ियां मुंडे झाड़दा बनना, उन्हें च बर्दाश्त नहीं होती, सियाने च बर्दाश्त होती है। और यहाँ जितने बैठे हैं बड़ी उम्र के लोग बैठे हैं, अगर ये अदमे बर्दाश्त का शिकार हो गए तो फिर इज्जत नूं लैके पार कौन लंघे? जिहड़ा वागी हुंदा है ना, जिहड़ा इज्जत नूं लैके चलता है वो बड़ा समझदार ते बर्दाश्त वाला हुंदा है। इसलिए तुसीं कदी भी किसी दी अदमे बर्दाश्त का जवाब ना दवो। क्यों? कहंदे ने ना छड्ड यार तू लोटियां वास्ते भी एक पैगाम है, ना छड्ड यार तू यार दा बूआ नहीं ते बन जाएगा रोगी। जेड़ी बकरी इजड़ों विछड़े ते ओ बगयाड़ा जोगी। जो भी अपने किसी लीडर से, अपनी पार्टी से, अपने मजहब से, अपने इस्लाम से, अपने मुल्क से गद्दारी करे या उस लीड को कहे कि मैं खुद ही लीडर हूं, नहीं। लीडर तनाव होता है, लीडर बर्दाश्त वाला होता है। कारकुन जज्बाती हो, लीडर बर्दाश्त वाला हो तो फिर जमातें चलती हैं, फिर मजहब चलता है। सुलह हदैबिया इधर मदीना पाक मक्का पाक चले जाएं तो ये सबसे बड़ी हमारे लिए रोल मॉडल शख्सियत मेरे नबी करीम द हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम पाक पैगंबर। हम मैट्रिक में ये लेसन पढ़ा था कि पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई रस्मी तलीम नहीं रखते थे, आप बल्कि रस्म रिवाज को ख़त्म करने के लिए आए। मगर यहाँ मदीना पाक में अमन वाले शहर में ये पैगाम है कि मदीना अमन का दर्स देता है, बर्दाश्त का दर्स देता है। सुलह हुदैबिया पे सहाबा ने गर्म जोशी दिखाई और मुस्तफ़ा ने नरमी दिखा के, बर्दाश्त दिखा के ऐसी शर्ती भी मानी जिसमें ज़ारी नुकसान हुआ। मैं कारकुनान को कहूँगा, जितने कारकुनान जहाँ बैठे हैं मियाँ साहब के, कि अगर लीडर कोई फैसला करे तो खुद लीडर नहीं बनते। लीडर की बर्दाश्त आपसे ज़्यादा होती है, लीडर की सोच समझ आपसे ज़्यादा होती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सुनिए, सहाबा ने कहे सोने असी हकते नहीं, आपने फरमाया कि हकते ते सोने ए शर्तां उन्हां दा बंदा साडे वल आए तो असा मोड़ना, तो साडा उधर जाए तो उन्हें नहीं मोड़ना। तो आपने मैं जिहड़ा साडा होया उधर जाके भी काम साडा ही करेगा, जिहड़ा साडा आया वो काम उधर जाके भी साडा करेगा। कुछ शर्तां ऐसियां भी मनियां जिहड़ियां चंद मिनट में मैंने बात खत्म कर देनी है कि हजूर ने फरमा दिता कि सहाबा आपने बर्दाश्त रखनी। फिर क्या हुआ? साल बाद अल्लाह पाक ने इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, अल्लाह ने फतह दी कि बिना लड़न तो मक्का फतह करा दिता। इसलिए जितने बैठे हैं अपने लीडर की मौजूदगी में फैसले नहीं करते। कारकुन कारकुन रहता है, लीडर लीडर होता है। और मैं यहाँ ये भी कहूँगा, किसी भी पार्टी का कोई लीडर हो, आपने जितने बैठे हैं मेरी बात ध्यान से सुने। मैं आपके लिए सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं पाकिस्तान में गली गली जाता हूँ, मुख्तलिफ लोगों की बातें भी सुनता हूँ, मगर यहाँ मेरे कहने का मकसद था कि हम अमन वाले शहर में बैठे हैं और यहाँ से पैगाम ये जाए कि लोग की पत्थर भी मारन ते असी, क्योंकि मियाँ साहब ने रोल मॉडल मनिया मदीना पाक में,
जदों भी गल करते हैं कि मैं मदीने चला, तो मदीना से ये पैगाम जाए पूरे पाकिस्तान के लोगों को कि हमने अदम बर्दाश्त खत्म करके पाकिस्तान की बका की जंग लड़नी है, पाकिस्तान को आगे लेकर निकलना है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अब पाकिस्तान मुश्किल हालात से निकल चुका है और बड़ा प्यारा लफ्ज आया है कि ये हमारा पाकिस्तान है। इत्थे मैं एक होर शेर पढ़ देना, कहते ने किधर गया दौर पुराना ते पै गया केड़ी राह, सारा टब्बर पी लेने सा पाइया दुध दी चाह। ते हुण मोटर भी सड़ जे ना ते बंदा चाचे घर पानी भरन जाए, इन्नी अदमे बर्दाश्त आ गई है कि जिन्ना ना पहला बटन सुटे ना चाची वेच के लग पैंदी। ये साडा भी हुण पंप साड़ के सा लिया मियां साहब, ये अदमे बर्दाश्त कार पहुंचाती गई है मावां च पुत्रां च। सानू मौलवियां लोग की आंदे तेनू की वो तुसी जन्म च डिगो ते सानू कुछ नहीं। असी मौलवी हजरात मिंबर दे वारस हां, रोज डकना लोगों को कह के टोया जे बचो। मैं इसलिए अदमे बर्दाश्त का मौजू आज मियाँ साहब के सामने तैयार किया है, क्योंकि जब लीडर की मौजूदगी में कोई किसी कार्यक्रम को पैगाम जाए तो वो पैगाम ये समझता है कि हमने बर्दाश्त रखना है। कहते ने नबी चाचा भावें ना बोले, चाची जरूर बोले। तुसी वेख लो अक्सर चाचे नहीं बोलते, भी भतीजा है, चलो कोई गल नहीं। इधर भी भतीजा बैठा ही है माशाल्लाह। अब्बास, अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत का बाग बनाए। तो कहते ने किधर गया दौर पुराना ते पै गया केड़ी राह, सारा टब्बर पी लेने सा पाइया दुध दी चाह। उदों दौर हुण अल्लाह माफ करे, इत्थे गुस्सा ना करना, मैं मौलवियां की गल करनी है। अगे आंदे सी जी मौलवी अदमे बर्दाश्त का शिकार ने, मौलवी ना जी फिरकावरीयत फैलांदे ने, मौलवी तसब फैलांदे। अल्लाह ने साडे कोलों ये ला के ना तो हुण अदमे बर्दाश्त ने गल पाती है कि ये लड़ते हैं एक दूजे नाल कि जनाब साडा ही मौका मन्निया जाए। मौलवी हुण हर मसीते जाते हैं, मैनू किसी मसीते सद लो। अगे मौलवी जनाजे ते भी लड़ पैंदे, मैं नहीं ये मगर पढ़ना, दूजा का मैं नहीं पढ़ना। वो मुर्दे का बस नहीं मियाँ साहब चलता, उठ के आके तुम सारे मरो, मैं ही तुहाडा पढ़ देना। हाँ जी, तो कितने दोस्त अहबाब हैं कि अब सियासतदान जो हैं इनके लिए ये मेरा पैगाम है कि आप अदमे बर्दाश्त खत्म करें। ऐ साडे चंद साहब सामने बैठे ने मियाँ साहब, कितनी बर्दाश्त है कि अपनी बेगम का जनाजा नहीं पढ़ा, नबी अल्लाह उतर गए अपने वालिद साहब का जनाजा नहीं पढ़ा, मगर अपने मुल्क से अपनी मिट्टी से वफादारी है। और मैं इसलिए इनकी मोहब्बत में ये बात इसलिए की है कि जो किसी सिफत होवे करो। बहुत तनावी किधर गया दौर पुराना ते पै गया केड़ी राह, सारा टब्बर पी लेने सब पाइया दुध दी चाह। उदों दौर मशीनी नहीं सी, शहरां दे विच शोर नहीं सी, बहुते डाकू चोर नहीं सी अखां विच हया। किधर गया दौर पुराना ते पै गया केड़ी राह, सारा टब्बर पी लेने सब पाइया दुध दी चाह। मैं उम्मीद करना मैं 5 साल अपनी 446 GLI चलाई मियाँ साहब के दौर च, ते 64 रुपए 60 रुपए पेट्रोल पवाया। ते जनाब जो मियाँ साहब जाते गए तो बाद फिर साड़ियाँ गड्डियां ने पैसे घर बचा के नहीं लियाते, जिन्ने जलसे तो मिलते उन्हें पंप से दे। तो अल्लाह मियाँ साहब आपको उम्र में बरकत दे, आपकी दीनी खिदमत भी कबूल फरमाए। और जितने आपने अफ्तार पार्टी में ये आपने चंद बुलाए हैं, इन चंद का जितना अजर अजीम है आपके वालिद साहब को और आपकी वालदा को और आपकी बेगम, पाकिस्तान की बहुत बर्दाश्त वाली और बहुत अखलाक वाली मरियम नवाज साहबा का जब इधर पाकिस्तान में कोई भी खिताब हो तो उनके अल्फाज से अखलाक का दायरा चुनाव मैंने देखा है कि माँ की आंदे माँ वालद तुम्हें दी कौड़ी हुंदी, असर हुंदा विच बीआं, जेड़ा काम मावां करदियां वो करदियां धीआं। माँ पर धी पिता पर घोड़ा, बहुता नहीं तो थोड़ा थोड़ा असर हुंदा है। अगर बेगम कुलसूम नवाज साहबा ने इतनी अच्छी तरबियत की है तो आज जितने लफ्ज़ बोलती हैं, कौन से लफ्ज़ पे कभी इतराज़ आया उनका, ना बदतमीजी आती। आगे जुनेद सफदर साहब उनके बेटे हैं और मैंने देखा है कि इतना समझदार बच्चा कोई अदमे बर्दाश्त वाला बातें भी करी जाए तो ऐसे ऐसे अपने होंठ लाता है, ठीक है जी ठीक है जी ठीक है। आगे से क्यों जो दुकान दे अंदर होवे ते ओह देवे बेचारा, किथों देवे तेनू लाल मुहम्मद ते कोले बेचन वाला।
جو ہٹی چوے سودا ہی ملتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حرم کے اس پاک شہر مسجد نبوی کے پاک شہر مدینہ پاک میں حضور کے شہر میں جو امن والا شہر ہے یہاں سے امن لے کر پیغام ہم پورے پاکستان میں جائیں اور پاکستان کی بہتری کے لیے کام کریں۔ اللہ پاک جتنے بیٹھے ہیں سب کو پاکستان کی بہتری کا سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میاں صاحب کے لیے ایک دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ جلدی جی ماشاء اللہ ٹھیک ہے۔